पुस्तकाचा आपण फायदेशीरचा आनंद घेतो. आता Hello. 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 आवाज आ रही है? हाँ सर. Aman, now I'm audible. हाँ सर आ रहा है. Aman, can you share me the password? हाँ सर एक सेकेंड. 60 एक 6896 6068 96.
So now we are going to start with we, we, we are continuing the gravitation remaining MCQs. MCQ number is 87. Okay, solve कीजिए सब. Let g be the acceleration due to gravity at Earth's surface, and kinetic energy be the rotational kinetic energy. Anirudh, can you please explain? सर लॉजिकली देखे तो अगर आर कम होता है तो वो जी इंक्रीज होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है. अगर हम लोग करने का ही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 2 का फैक्टर आता है, 2 इंटू 2 4. वैसे ही के क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर, मतलब आई का मतलब ना. Yeah. तो उससे आर स्क्वायर का फैक्टर आएगा, इसलिए वो इंक्रीज होगा बाय 4%. तो आप कह रहे दोनों में इंक्रीज होना चाहिए 4% से, राइट? हाँ. Okay, good, correct है. So let us solve this. Okay, 87. So 87 में what is the formula of G? G, it is equal to Gm divided by R square, right? G, it is equal to Gm divided by R square. Now what it is written? What is written? R square. That radius decreases by 2%. So that means G, it is inversely proportional to square of the radius. तो अगर radius if it decreases तो G will increase. If radius decreases by 2%, G will increase by square of that percentage. It will increase by 4%, right? So ये clear हो गया कि G, it is going to increase by 4%. Okay. So increases by 4%. It is only available in option C. So option C is your correct answer. Okay. अगर हम kinetic energy की बात करें तो kinetic energy it is equal to what? Half I omega square. Right now. यहाँ पे I में भी m r square है, right? And omega में भी क्या है? V divided by r square है. Getting or not? तो आपको I वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. What you have to use is the formula of L, एंगुलर मोमेंटम. बताइए एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ L ओमेगा, आई ओमेगा. हाँ. राइट ना? हाफ L ओमेगा से करना है, ठीक है? सो अगर आप ऐसे करोगे हाफ L ओमेगा से, then you will get that kinetic energy. It is what inversely proportional to again R square. So again, if R decreases by 2%, then kinetic energy it will increase by 4%. So in both the cases, the radius if suppose decreases by 2%, the kinetic energy will increase by 4%. Okay, so C option रहेगा. Kinetic energy का relation निकालो. Kinetic energy का relation with respect to radius. So kinetic energy directly proportional to R square, no? Yes.
Sir, kinetic energy directly proportional to r square, no? Kinetic energy is directly proportional to r square. कैसे किया? हाफ mv स्क्वायर में v स्क्वायर के लिए r ओमेगा डाला. नहीं सॉरी, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है. दिस हाफ एल ओमेगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i. ओके, यूज दिस फॉर्मूला. Okay. ओके, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा. L square divided by 2i, you have to use this formula. Okay, so kinetic energy rotational, it is equal to L square divided by 2i. If you use this formula, you will get this. I, it is equal to mr square, no? Then kinetic energy is inversely proportional to r square. Okay, then you will get the answer. Okay, remember this. जब भी सर kinetic लेकिन energy, हाँ बोलिए. हाँ सर, तो हम लोग ने आई के जगह पे क्यों नहीं हम लोग ने यूज किया? मतलब मालूम कैसे पड़ेगा वो यूज करना है कि ये यूज करना है? We should not consider omega in this case. Why? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ओमेगा कंसिडर नहीं करना है. Okay. सर मतलब अभी ऑर्बिट जो है सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा तो फिर ओमेगा कंसीडर करना पड़ेगा ना. एक मिनट, मैं दूसरा हेडफोन लेता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही. हेलो हेलो. Hello. Yes. हाँ सर. हाँ ओके, आई एम Yes. ऑडिबल राइट? हाँ सर. चलो ठीक है, अभी बढ़िया चल रहा है सब. हाँ हाँ बोलिए गणेशन, क्या कह रहे थे आप? गणेशन कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर. बोलिए. एक मिनट. हाँ, अगर अभी ऑर्बिट जो है सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसमें ओमेगा का तो फैक्टर आएगा ना सर. एक्चुअली ओमेगा लिखोगे आप तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? v डिवाइडेड बाय r, राइट? हाँ. हाँ तो इसमें ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में वेलोसिटी में भी रेडियस आता है ना, राइट? और Yes. डिनोमिनेटर में भी रेडियस है पहले से, करेक्ट है ना? राइट. तो इसीलिए हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे इसमें. ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग ओनली एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i. तो जब भी काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, हमें एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i वाला फॉर्मूला यूज करना है ग्रेविटेशन चैप्टर में. ठीक है, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass m is dropped from a height nr above the surface of the earth. Here r is the radius of the earth. The speed at which the body hits the surface of the earth is. तो यहाँ पे फ्री फॉल वाला कंसेप्ट है. ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा कि whenever a body is going to hit the surface of the earth, okay, so you have to use law of conservation of energy concept. Okay, you have to use law of conservation of energy concept. समझ में आया ना? तो जब कोई भी क्वेश्चन में रहेगा एट व्हाट स्पीड द बॉडी इज गोइंग टू हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जब भी फ्री फॉल वाला कंसेप्ट रहेगा, यू हैव टू यूज total energy remains constant. So total energy in the first case will be equal to total energy in the second case, or you can consider the height edge and this will be the ground, total energy on the ground. Okay, so body of mass m
is dropped from a height. So total energy it is equal to what? Kinetic energy plus potential energy. यहाँ पर भी it will be kinetic energy plus potential energy, right now. Kinetic energy formula is what? Half mv square. Now यहाँ पे escape velocity, critical velocity कुछ नहीं होने वाला. It is what? Freely falling velocity, okay. Potential energy का formula क्या होता है? At height h minus g mm divided by r plus h. Okay. It is equal to kinetic energy on the ground. The object it is not going to move, right? So the kinetic energy it will be 0. लेकिन potential energy on the ground it will be minus g mm divided by capital R. Getting or not? So यहाँ पे लिखा है that h value it is equal to height it is equal to nr. Okay. So height if it is equal to nr, so you should solve this. चलो देखो कैलकुलेट करके. So half mv square minus g mm divided by r plus nr will be equal to minus g mm divided by capital R. So half m v square will be equal to g mm. Suppose I take outside. R भी ले लो. Sorry. R भी ले लिया बाहर. Okay. So यहाँ पे बचा 1. Okay. माइनस साइन भी ले लो. नहीं माइनस नहीं. एक प्लस और एक माइनस है ना, ये यहाँ जाएगा तो राइट. ये पॉजिटिव हो गया, तो वो पॉजिटिव हो गया तो यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, राइट. एंड यहाँ पे बचा -1. ओके. तो इसे सॉल्व करो. ये क्या आ रहा है अभी? जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. 1 minus 1 minus n, तो minus n divided by 1 plus n. Okay. So n plus 1. Okay. So ये है half m v square. तो mm will get cancelled. Okay. So if mm will get cancelled, this सर बुक ऊपर लो ना. gm this gm can be written as what? gr square. So next step में लिखो gr square. एक r cancel हो जाएगा. ये 2 उधर चला जाएगा. So 2gr n divided by n plus 1, और ये v square है तो रूट हो जाएगा वो. That will be option D, right? तो छोटा g है ना उधर. हाँ तो gm is equal to gr square लिख रहे हैं ना. कैपिटल gm is equal to gr square लिख रहे हैं ना. आ गया अनिरुद्ध? हाँ सर. डी आया? डी. हाँ सर आ गया. आ गया ताहा डी ऑप्शन. सर आपका देख के आया. हाँ कोई बात नहीं, आ गया ना. ओके. 89. The height at which the weight of the body becomes 1/16 its weight on the surface of the earth is. तो height find करना है. तो ये सिंपल है. ओके. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? GH it is equal to G into R divided by R plus H the whole square. ओके. ये फॉर्मूला यूज करो. तो GH हाँ GH की जगह पे क्या लिखोगे? 1 G divided by 16, राइट ना. GH की जगह पे लिखोगे G divided by 16. सो अनिरुद्ध का ऑप्शन सी आया है. करेक्ट है ऑप्शन सी. फिर 1/16 का आप स्क्वायर रूट लोगे बिकॉज बोथ दूसरे साइड पे स्क्वायर है. तो 1/16 it will be 1/4. Then cross multiply करोगे, you will get the value of h. H will be equal to 3r. गणेशन आ गया क्या? हाँ सर 3 आ रहा है. रांची आ गया 3r. हाँ. Okay, G it is equal to G divided by 16. So G R divided by R plus H the whole square. Then G will get cancelled. फिर square root लोगे 1/4 it is equal to R divided by R plus H. Then you cross multiply. R plus H it will be equal to 4R. So H will be equal to 3R.
Okay. Next is 90. Next is 90. आ गया सबका 3 और 29 का. हम्म 90 वाला सिंपल है ना. A spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of the planet will experience an acceleration due to gravity. So what is the formula of acceleration due to gravity? G is equal to gm divided by r square, right? अभी इसको लिखो in terms of diameter and you will get the answer. R is equal to diameter divided by 2. So d square divided by 4. So 4gm divided by d square. Right now, Ganesh correct है. Option A. So gm divided by d by 2 the whole square. So this will be 4gm divided by d square. Right now, 4gm divided by d square. This is correct. Next is 91st. Two bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on a line joining them where the gravitational field is 0. It is what? So what is asked? The distance is asked or gravitational potential पूछा? 2 मिनट का टाइम. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना. हाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछा. ओके, तो एक बॉडी है जिसका मास है m, दूसरा बॉडी है जिसका मास है 4m. ओके, there is the distance between these two masses are given. The distance between them it is what r. Okay. अभी वो कह रहे हैं कि there is one point on the line joining these two masses. So this is what a line joining the two masses. There is one point. Suppose that point is here. Okay. With respect to m, इसका distance है suppose x. So इस यहाँ से लेके यहाँ तक का distance कितना हो जाएगा? r minus x. Getting or not? वो कह रहा है कि यहाँ पे gravitational field जो है वो 0 है. तो यहाँ पे gravitational field 0 है. Gravitational field is 0. That means no force is experienced by an object which is present at a distance of x from a planet of mass small m. Okay. तो इसका मतलब दोनों planets के बीच में वो वाले point पे, suppose that point is P, वो वाले point पे the net gravitational force of the between the two planets are equal. Okay. So suppose इसका gravitational force है F1, इसका gravitational force है F2. So what we have is F1 it is equal to F2. Okay. सबसे पहले you have to get this x. आपको सबसे पहले क्या चाहिए? X का वैल्यू चाहिए. क्योंकि आपको पूछा है gravitational potential. What is gravitational potential? Gravitational potential is denoted by capital V. It is equal to minus gm divided by distance. Yes or no? So टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या रहेगा? टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल रहेगा v1 प्लस v2. मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल पहले प्लैनेट का प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल दूसरे वाले प्लैनेट का. ठीक है. सो ग्रेविट डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, x फाइंड करना पड़ेगा. सो f का क्या फॉर्मूला है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, g एक है mm, राइट? एक है m, दूसरा कितना 4m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इसका डिस्टेंस कितना देगा? यू हैव टू कंसीडर x square. you have to consider x. Okay, wait. x square और r minus x square. We will consider that one another object जिसका mass है m dash, it is present at the point P. Okay, so this will be
अगर सपोज फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का लिया, सो दिस विल बी m डैश into m divided by distance square x square will be equal to what? G into m dash into what? 4m divided by r minus x the whole square. Okay, so ये m dash cancel हो जाएगा, m भी cancel हो जाएगा, g cancel हो गया. Okay, so what we have is r minus x the whole square, it is equal to 4x square. So r minus x will be equal to 2x. So what is the value of r? R is equal to 3 times x. So x is equal to r by 3. Okay, so x is equal to r by 3. So what is v1? v1 will be equal to minus gm divided by distance. उसका distance है x, x मतलब r by 3 minus gm divided by r minus x. r minus x, it is equal to what? r minus r by 3 means 2r by 3. 2/3 यार ना? कितना आ रहा आंसर? minus 3 gmm divided by r minus 3 gmm divided by 2r. dr This will be 9 6, this gm will by be r. 12. So it will be minus gmm divided by 2r आ रहा है क्या? हाँ, एक में नीचे एक में -3 gm/r और दूसरा -3 gm/2r. जनरेशन आया आपका डी ऑप्शन? हाँ सर डी आया -9 gm by r. ओके. ये दूसरा वाला मास्क 4m है ना, ये सेकेंड वाला जो है वो 4m है, तो ये 4m है. ओके, so this is what 4m. So if suppose this is what 4, then this will be, there is no need to rationalize now. फिर 9 आई. हाँ 4m डाल के आया. v is equal to v1 plus v2. ओके, तो पहला वाला क्या है? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय x बाय 3. दूसरा वाला क्या है? माइनस जी m नहीं है, ये 4m है. ओके, डिवाइडेड बाय 2x by 3, right? So this will be 2 ones are and just 2. So this will be, v will be equal to minus 3 gm divided by x, और ये हो जाएगा minus 6 gm divided by x, and this is sorry r is what r. So this will be minus 9 gmm divided by r. Okay, DHC. so this is option D. 92. अमन आप हो साथ में? हाँ सर हूँ 92. 92 में भी सेम है, करो. वो पहले वाले इसमें 4m था, इसमें 9m है. x equal to r/4 आया सर. x is equal to r divided by 4 आ गया. So v will be equal to minus gm divided by r by 4. एक पहले आएगा, दूसरा आएगा minus g m कितना 9m है, divided by ये कितना आ जाएगा 3 r by 4, right? So this will be 3 1s are 3 3s are 9. This will be minus 4 gm divided by r minus 12 gm divided by r. 16. Minus 16 gm divided by r. Very good. Ganeshan and Anirudh. दोनों को मिल गया सी ऑप्शन.
It is minus CR. 16 mm divided by R. Okay, good. मन आ गया. Okay, minus 16 mm. सबका आ गया ये आंसर क्या अभी भी डाउट है कुछ? आ गया। Okay, good. 93. Two bodies of masses 100 kg and 1800 kg are held at a distance of 1 meter. Gravitational field at a point on the line joining them is zero. The gravitation potential at that point in joule per kg. सेम टाइप है ना? सेम है. अभी masses का values दे दिया सीधा. Okay, masses का value दिया है. करो. सुरेश कटियाल 93 वाला कर रहे हो? अनिरुद्ध आ गया 93. एक सेकंड. आर कितना आया? सर इसका वैल्यू 0.1 आया क्या? आर कितना आया? आर पॉइंट में रखना सर दिया है. x 0.1 आया क्या? अच्छा x कितना है? 0.1. हाँ मुझे 0.1 आया. अनिरुद्ध आपको भी 0.1 आया. अमन हाँ 1/8 आ रहा है. कहा आपको कितना आ रहा है? 1/8 आया. कहा आपको कितना आ रहा है? मेरे को अब तक नहीं आया. x फाइंड करो x. मेरे को अब तक नहीं आया. हाँ ठीक है कोई बात नहीं. अमन आप फिर से देखो 1/8 आ रहा है क्या या 0.1 आ रहा है? सर एक मिनट. 0.1 आएगा 0.1. सत्य प्रकाश आया 0.1. हाँ x का वैल्यू ना आया सर. हाँ टोटल v टोटल फाइंड करो. v टोटल v1 plus v2. So it will be minus g का वैल्यू दिया है 6.67 into 10 raised to the minus 11 into m. पहला वाला मास है वैल्यू 100 -6.7 10 raised to -7 डिवाइडेड बाय x. तो ये है 0.1 राइट पहला वाला. दूसरा अगर हम देखें प्लस तो माइनस रहेगा 6.67 into 10 raised to the minus 11 into 8100 डिवाइडेड बाय 0.9. इसको सॉल्व करो. ऑप्शन दियो ना. ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस दूंगा तो आप सॉल्व नहीं करोगे ना. सीधा बता दो यही आंसर. नहीं किया है इसलिए पूछ रही हूँ. कितना सर है? पावर का तो डिफरेंस है.
बोलो क्या आएगा आंसर? 10⁻⁷ के पावर। हाँ वही फर्स्ट वाला 6 7 -7 वाला। अरे सी भी तो 10 ए रेज़ टू ऑप्शन पावर है। -7 है, सी भी तो 10 रेज़ टू पावर -7 है। नहीं ना, लेकिन जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अरे दूसरा सर वाला ए मास भी तो है, दूसरा मास कंसीडर नहीं कर रहे हो क्या? सब किया सर। ये देखो, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? ये 10 रेज़ टू पावर -1 ऊपर गया तो +1 3। सो ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ये आएगा -6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ये सेकंड वाला वैल्यू नहीं कर रहे हो क्या? सेकंड वाला वैल्यू किया सर, कितना आया? वो मैंने कॉमन लेके किया इसलिए मेरे को ऐसा नहीं बता पाऊँ। सर आपने पहले के दो सम जैसे किए ना वैसे ही किया है हम लोग ने, और लास्ट में आर और जी सब्स्टिट्यूट किया है, एक एक नहीं किया। So this is V1, that is GM1 divided by suppose 0.1, okay, minus GM2 divided by 0.9. So minus G को हमने बाहर निकाला, राइट? So ये है 100 divided by 0.1 और ये माइनस है दूसरा, माइनस जी तो प्लस है। So ये है 8100 0.1 माइनस जी, ये हो गया 1000, ओके। ये कितना हो गया? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ना, समझा? तो ये किया गया आपने, ये कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, ओके। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, ठीक है, ऑप्शन है। वही आया ना आपको भी। ओके, आई एम सॉरी प्राची जी। चलो प्राची जी फिर 94 वाला करके बताओ। सर कोई एक कंसीडर किया तो भी सेम वैल्यू आता है, ऐसा कैसे? नहीं, 10 का पावर अलग आएगा। टेन का पावर अलग आएगा, ये 7 नहीं है, -7 नहीं देगा ये। टेन का पावर अलग आएगा, प्रूव करोगे तो गणेशन यहाँ पे अलग आएगा, ओके। हाँ सर। 94 वाला मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ना, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दिया था, याद है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था बताओ? सर GM/r² ना, एक मिनट। मैक्सिमम हाइट का नहीं, पिछले वाले सम का बोल रहा हूँ। नहीं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो gm डिवाइडेड बाय r होता है ना, v। gm डिवाइडेड बाय r² तो स्मॉल g का वैल्यू होता है। हाँ बताओ, फॉर्मूला बताओ मुझे। याद नहीं? r डिवाइडेड बाय VC/V। नहीं, ve डिवाइडेड बाय V the whole square -1. This is maximum height, right? तो आपका वेलोसिटी कितना है? u है, u। तो बताओ उस हिसाब से क्या आंसर बनेगा? ओके, अनिरुद्ध का ऑप्शन ए आया है। नहीं सर, वो पहले का भेजा था मैंने, अच्छा, 93 का। इधर क्यों रहा? इसका भी ऑप्शन ए ही है। क्या? राइट, तो r है, एस्केप वेलोसिटी क्या रहता है? √2gr, राइट? डिवाइडेड बाय u का, ये v का वैल्यू u है, the whole square -1, okay? So this will be r divided by 2gr divided by u square -1. तो क्या रहेगा? u square r divided by 2gr minus u square, okay? That is option A, right? हाँ
Next is 95th. A particle of mass m is situated at the center of the spherical shell of same mass at radius a. The magnitude of gravitation potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be. If you see, a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass. So this is what a spherical shell. उसका भी मास सेम है, मतलब स्फेरिकल शेल का मास m है और एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जिसका मास भी कैपिटल M है. So it is present like this. The distance between these two, it is equal to what? A. The magnitude of the gravitation potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be. तो ये suppose एक distance है, half of the radius a by 2. यहाँ पे gravitation potential कितना रहेगा? ये पूछ. Okay. So क्योंकि यहाँ पे दो masses है. Okay. एक ये वाले पॉइंट पे पूछा ना, तो ये वाले पॉइंट पे पहला वाला मास क्या रहेगा इसमें? m. ओके. और दूसरा वाला मास ये कंप्लीट स्फीयर. ओके. सो देयर विल बी टू मासेस. सो टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या रहेगा? टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल विल बी v1 प्लस v2 व्हिच इज नथिंग बट माइनस gm डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का डिस्टेंस इट इज व्हाट a माइनस gm, सेकंड वाले का डिस्टेंस इट इज a by 2. So it will be how much? Minus 3gm divided by a, right? D है क्या option? D option है. Okay, so option D. आ गया सबको 95 का? सर वो पॉइंट का मास भी सेम एज्यूम करने का ना? नहीं, इसका मास नहीं एज्यूम करना आपको. एक ये हो गया और एक ये हो गया. अभी आप बोलोगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये अलग रहेगा इससे, राइट? ये वाला डिस्टेंस अलग रहेगा, लेकिन दिस इज व्हाट अ हॉलो स्फीयर. तो जब भी आप हॉलो स्फीयर कंसीडर करोगे तो यू हैव टू कंसीडर द रेडियस. ओके, याद रखना कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करोगे तो यू हैव टू कंसीडर व्हाट? रेडियस. मतलब वी हैव टू कंसीडर दैट ग्रेविटी इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर. ओके, उसका इफेक्ट जो है वो सेंटर से आता है, क्योंकि जितना ये वाले मासेस इसके नजदीक रहेंगे उतना वो यहाँ से दूर भी रहेगा. ये वाला जो मासेस है इट विल बी अवे. गेटिंग और नॉट? ओके. तो उसका तो मास जो है वो टोटल का है या फिर पॉइंट का है? वो सेंटर का ना? यहाँ का है. ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, हाँ. ये इधर का ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. ओके. हाँ. 96. An asteroid of mass m is approaching Earth, initially at a distance with a speed of vi. If hits the Earth with a speed of v. तो अभी ये फिर से freely falling वाला कंसेप्ट है ना. मैंने क्या कहा था? freely falling वाले कंसेप्ट में कौन सा यूज करना है कंसेप्ट? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. तो वो वही वाला कंसेप्ट यूज करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ v. टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट वाला. So total energy, first case will be equal to total energy, initial total energy will be equal to final, or final will be equal to initial because final इस तरफ है. So kinetic energy plus potential energy होता है, right? Kinetic energy will be half m vf square. vf का वैल्यू चाहिए आपको, plus potential energy, gravitation potential energy minus रहता है, तो minus gmm divided by r plus h. So r plus h का वैल्यू कितना है? 10r है. ओके, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना रहेगा उसका? 0 सपोज. ओके, सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m vi square. ओके,
ये जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल रहेगा इट विल बी GMM डिवाइडेड बाय R ओनली. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी GMM डिवाइडेड बाय R plus 10R. Okay, so this will be half mvf square minus gmm divided by R. It will be minus this v square minus gmm divided by 11R. Okay, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा. So half mvf square half mvi square minus gmm divided by 11R plus gmm divided by R. So this will be gmm divided by 10R. Sorry, क्या कर रहा हूँ मैं आज, क्या हो गया? This will be आ रहा है. mm कैंसिल कर दो. mm will get cancel. ये जो प्लस आ गया यहाँ पे, ये जो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा. Then you write 2 there. So this will be vf square is equal to vi square plus 2gm. m भी कैंसिल हो गया. कितना हो जाएगा? 10 divided by r को बाहर निकाल दो. 10 divided by 11. So 10 divided by 11. अरे वो सी ऑप्शन आया, क्या गलत किया हमने? सर एक सेकंड है, देखा नहीं मैंने. थोड़ा सा बुक नीचे करना तो. सर वो आपने डिस्टेंस को ना r plus 10 मत लो, सिर्फ 10r लो, क्योंकि वो डिस्टेंस बोला ना, तो फिर वो मैंने वही लिया, उससे मेरे को आ गया. अच्छा, एन आर लिया आपने, फिर उसके बाद मैं एन का हाँ. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. 10r आपने r plus 10 लिया है ना, 11r नहीं होगा, 10r होगा. अरे हाँ, ये देखो यहाँ पे हाइट नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? डिस्टेंस लिखा है. डिस्टेंस ऑफ 10r. ओके, so if suppose distance it is written, so we should not consider it is height. So total it will be 10r. समझा? So 96. क्या किया? टोटल एनर्जी फाइनल इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल. ओके, टोटल एनर्जी फाइनल इट इज हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर फाइनली. ओके, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर minus GMM divided by not R plus 10R, it should be 10R. Okay, so you get 10R. Then you can cancel small m from both the sides. Okay, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? This will be half VF square is equal to half VI square minus GM divided by 10R plus GM divided by R. तो 10 आप एडजस्ट करो यहाँ पे, दिस विल बी प्लस 9 GM डिवाइडेड बाय 10 आप. किसका माइक ऑन है? ऑफ करो. हाफ वी एफ स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ वी आई स्क्वायर. ओके, सो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, राइट? वी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ कैंसिल होने की वजह से. सो दिस विल बी 2gm divided by r multiplied by 9 by 10. 9 by 10 it is what? 1 minus 1 by 10. Option C. Right? आया सबको? आ गया अमन? हाँ सर.
97 वाला तो हो गया हमारा, हमने किया था। बताओ आंसर दो। मास m is split into two parts, small m and m minus m, small m, which are then separated by certain distance. The ratio of small m divided by capital M maximize the gravitational force between the two parts. 1/2. It should be 1/2. याद है ना, हमने किया था, right? It should be 1/2. So option B is correct. Option B is correct. Okay. Next. 98. Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance. So gravitational force varies inversely as the nth power of distance. ऐसे लिखा है. So gravitational force, it is what F. It is inversely varying with nth power per distance. So inversely proportional to r is to n. Then time period of the planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. So what time period will be proportional to? पूछ रहे time period के बारे में. So in a circular orbit is important. तो जो gravitational force है वही क्या होता है circular orbit में? Centripetal force. So centripetal force, it is nothing but m omega square r, right? So m omega square r, it is inversely proportional to r raised to n then. Yes or no? तो ये r अगर यहाँ पे चला गया दूसरी तरफ तो m omega square will be inversely proportional to what? r raised to n plus 1, right? M, it is what? Constant. That means omega square, it is inversely proportional to r raised to n plus 1, right now? So omega, it is nothing but 2 pi divided by capital T. So 4 pi square divided by t square. It is directly proportional to r raised to n plus 1. That means t square, it is directly proportional to r raised to n plus 1. Now what we have is t. So t will be directly proportional to r raised to n plus 1 divided by 2. Right? R raised to n plus 1 divided by 2. Option A. Option A. आया सबको? तेजस? ईशा आ गया? ये सत्य प्रकाश को आया है. ओके गुड. संदेश? नाइनटी 99 वाला सेम है, करके बताओ. जेमिन 99 वाला कर रहे हो? नाइनटी 98 वाला हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है. नोटबुक में है, आप नोटबुक चेक कर लो. अमन 99 कर रहे हो क्या? हाँ सर, 1 मिनट. हाँ, टी स्क्वायर पूछा है, टी नहीं पूछा है, ठीक है. टी स्क्वायर पूछा है, टी स्क्वायर डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ. ए ना सर. ये कैसे है प्राची? सॉल्व करके सर. बताओ ना कैसे सॉल्व किया. जैसे पहले वाला किया वैसे ही आपने किया वैसा. If the gravitational force of attraction varies as r is to minus pi by 2 ना, so क्या लिखा पहले लिखा आपने f it is directly proportional to r is to minus pi by 2, ऐसे लिखा ना. प्रोपोर्शनल टू.
डायरेक्टली अरे वहां पे लिखा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले वाले क्वेश्चन में तो इनवर्सली लिखा हुआ था, स्पेसिफाई था, वेयर इज इनवर्सली एज एन पावर ऑफ डिस्टेंस, राइट? मेरा रॉन्ग है, रुको रुको। गुड, वेरी गुड. So if it is directly proportional to r is to minus 5 by 2, okay? Now you solve. C आ रहा है सबको, r is to 7 by 2. अनिरुद्ध को आ गया C, सत्य प्रकाश को भी आ गया है, संकेत को भी आया, वेरी गुड. सी आ रहा है। अमन को भी आ गया, चलो ठीक है. m omega square r directly proportional to r is to minus 5 by 2, right? So omega square will be directly proportional to r is to minus 5 by 2 minus 1, okay? कितना आएगा ये? Directly proportional r is to minus 7 by 2. So inversely proportional to t square, directly proportional to this is what, this is r is to minus 7 by 2. That means t square, it is directly proportional to r is to 7 by 2. That is option C. Good. आया सर। अच्छा, good. 100. Two stars of masses m1 and m2 are parts of binary system. Now binary system means there will be a binary मतलब 0 and 1 मतलब दो ही logic, right? दो values. Binary system means there will be only two planets in the gravitation chapter, okay? So m1 and m2 are the only two planets in the system. So अगर दो ही planet है, तो if suppose दो planet है, तो ये दोनों planet एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना? रोटेशन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, लाइक दिस. जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल स्टार, उसके आजू बाजू में प्लैनेट्स दे मूव, ओके? बट सपोज दो ही प्लैनेट अगर कंसिडर करोगे, सो ये दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे. जरूरी नहीं है इन दोनों का रेडियस सेम होगा, ओके? तो सपोज पहला वाला जो प्लैनेट है वो ऐसे मूव कर रहा है, सो दूसरा वाला प्लैनेट जो है, the another planet it can move like this, okay? Getting or not? But अगर suppose एक clockwise घूम रहा है, so दूसरा वाला भी clockwise ही घूमेगा. suppose कोई clockwise घूम रहा है तो दूसरा वाला भी clockwise ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा. मतलब कभी भी ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के नजदीक में नहीं आएगा, मतलब ऐसा 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 सिचुएशन नहीं होगा कभी. समझ में आ रहा है? एक प्लैनेट सपोज यहाँ पर है तो दूसरा प्लैनेट एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड में रहेगा इन अ बाइनरी सिस्टम, ओके? You got this? Understood binary system? अनिरुद्ध binary system समझा? अमन binary system समझा क्या? आपका आवाज कट रहा था बीच में, और थोड़ा नीचे करो सर, थोड़ा सा. देखो binary system में there will be only two planets, okay? और ये दो planet भी कैसा रहेगा कि suppose if one planet is moving in clockwise, another will also move in clockwise direction, okay? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि two planets, एक planet clockwise दूसरा planet anti clockwise. Binary system में जरूरी नहीं है कि ये दोनों same circular orbit में घूमेंगे, okay? First वाले planet का circular orbit it can be like this, दूसरे वाले का सर्कुलर ऑर्बिट उसका दूसरा रेडियस हो सकता है. बट द थिंग इज, इफ सपोज एक प्लैनेट यहाँ पर है तो दूसरा प्लैनेट हमेशा उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड में रहेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये दोनों प्लैनेट्स के, बाइनरी सिस्टम के दोनों प्लैनेट्स के टाइम पीरियड विल बी सेम. सपोज इसका टाइम पीरियड इट इज व्हाट टी ए, ये फर्स्ट ए प्लैनेट है, दिस इज बी प्लैनेट, सो टी ए वैल्यू एंड टी बी वैल्यू विल बी सेम, ओके? ये याद रखो बाइनरी प्लैनेट्स का. अगर ये दोनों टाइम पीरियड सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी प्लैनेट कभी भी ये वाली कंडीशन में नहीं मिल सकते. समझ में आ रहा है ना? ये दोनों कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, राइट? सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ऑलवेज इट विल बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट. समझ में आ रही है कि नहीं? राइट, ओके. अभी 100 वाला करो. Two stars of mass m1 and m2 are parts of the binary system. The radii of their orbits are r1 and r2 respectively. Measured from center of mass of the system, the magnitude of gravitational force m1 exerts on m2 is.
सो सपोज ये दो प्लैनेट्स है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली एट द सेंटर. ओके, सेंटर ऑफ मास इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर. इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2. Okay, so what is the gravitational force between these two planets? Gravitational force it is given by g m1 m2 divided by r square, right? So g पहला m1 है, दूसरा m2 है, right? r square मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो r1 plus r2 the whole square. That is option A, ए Yes. right? हाँ आगे option है, हाँ right? Good. मतलब सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ये करना पड़ेगा हाँ ना हाँ, ऐड. यस यस यस, डिस्टेंस को ऐड करना है क्योंकि हमेशा वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है, राइट? ओके, Yes. नेक्स्ट 101 क्वेश्चन. इसको तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो. A system of binary stars of masses ma and mb are moving in the circular orbit of radii ra and rb respectively. If t and tb are the time period of masses ma and mb respectively, then time periods are same, na? Equal. इक्वल. Equal. Very good. So option D. Option D is correct. Okay. 102. A spherically symmetric gravitational system of particles have mass density this, where rho 0 is the constant. A test mass can undergo circular motion under the influence of gravitational field of particles. If its speed v as the function of the distance r, and r can take value from 0 to infinity. From 0 means it will be starting from center of the planet, okay, and it can go up to height equal to infinity. From the center of the system, it is represented by, मतलब velocity versus distance graph चाहिए आपको. तो इसके लिए आपको ग्राफ्स को पहले एनालाइज करना पता रहना चाहिए, कौन सा ग्राफ किसको बिलोंग करता है. तो अगर सपोज ऐसा ग्राफ है, ओके, एकदम स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी और ये आर है, तो ये ग्राफ कभी आएगा? स्ट्रेट लाइन कभी आएगा? मतलब ऐसा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये साहा कभी आएगा? अमन, गणेशन, अनिरुद्ध? बस अभी डिस्टेंस वर्सेस ये है, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा. नहीं, ये ग्राफ कभी आएगा? ये वाला ग्राफ मैंने जो बनाया, ऑप्शंस मत देखो, एबीसीडी मत देखो, v वर्सेस r, जो ये स्ट्रेट लाइन. जब वेलोसिटी पैरेलल है ना वो एक फिर साथ. कांस्टेंट रहेगा ना. हाँ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन r. और ठीक है, तो ये तभी आएगा. दूसरा, अगर सपोज ये वेलोसिटी वर्सेस r है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक के स्लोप आया, इसका मतलब क्या रहेगा? वो वेलोसिटी और r प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. अगर सपोज ये वाला ग्राफ है, ऐसा वेलोसिटी है और r है, एंड इट इज लाइक दिस, सेम एज ऑप्शन बी. ओके, तो बताओ ये कभी आएगा? ये ग्राफ कभी आएगा? जब भी वेलोसिटी एंड r इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. और नेक्स्ट Yes. है हमारा, तो इनवर्सली टू r स्क्वायर रहेगा ना. माउंटेन ग्राफ का. सी और डी देखो क्या है. सी और डी पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं, राइट? सी और डी हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तभी वो वाला ग्राफ आएगा. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. ओके, सर क्यों? ये ग्राफ उसका है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का ग्राफ है ये. r का था ना, r स्क्वायर. नहीं, हमने वो ग्राफ देखा था ना, ये g वर्सेस डिस्टेंस का, राइट? तो हाँ. ये ग्राफ पहले ऐसा था, फिर उसके बाद में इट वाज लाइक दिस, राइट? यस. तो ये और ये ग्राफ सेम दिख रहा है ना आपको, राइट? हाँ.
तो ये कभी आया था हाइट पे, जी एच इट इज इक्वल टू जी इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर, राइट ना. दैट मीन्स दिस जी इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, राइट. तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ है ये, समझे. ओके. सर वैसे तो फिर सी आना चाहिए बट वो क्योंकि हाँ, जी का नहीं पूछा है, v का पूछा. ओके सर लेकिन क्योंकि देखो ना वेलोसिटी हम्म. इज मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, तो v और g भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो r हो जाएगा वो लॉजिक से. हाँ, ये लॉजिक भी आपका सही है, ठीक है. तो अनिरुद्ध कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो इफ यू कंसीडर टाइम दोनों के लिए एज अ कांस्टेंट फैक्टर, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो अगर g वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे आता है तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी सेम आना चाहिए. तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बन जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके. सर एक सेकंड नोट करने को. हो गया. राइट. किसी को कुछ डाउट है इसमें क्या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके चाहिए आपको? गणेशन यस अमन करेक्ट. सी ऑप्शन आ गया, समझो. सर. ताहा हाँ, जो सी ऑप्शन समझ गया. Yes, sir. ओके. गणेशन सी ऑप्शन. प्राची ऑप्शन सी. हाँ सर. Okay, 103. Assertion is an astronaut in an orbiting space station above the Earth experiences weightlessness. Okay, so this is true, right? स्पेस स्टेशन में जो भी रहेगा उसको वेटलेसनेस फील होगा, राइट ना. और उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फ्री फॉल इट एक्सपीरियंसेस द वेटलेसनेस कंडीशन. रीजन इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स is in state of free fall, right? So reason is also true and it is the correct explanation of the assertion, right now. तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए. So option A is correct. Okay, next 104. Infinite number of spheres are there. Each of mass m are placed on the x-axis at a distance of 1, 2, 4, 8, 16. meters from the origin. The magnitude of the gravitational field at the origin is. So magnitude of the gravitational field मतलब total gravitational field it will be nothing but gravitation potential. Gravitational field मतलब gravitation potential. Okay, so it is nothing but minus g m divided by r1 minus g m divided by r2 minus g m divided by r3 like this. Okay, so अगर suppose minus g m को कॉमन ले लिया आपने, so this will be 1 divided by r1 plus 1 divided by r2 plus 1 divided by r3 plus 1 divided by r4 and so on. Okay, so this is nothing but minus gm तो सब में सेम है. पहला वाला क्या रहेगा? 1 प्लस दूसरा वाला क्या रहेगा? 1/2. फिर आगे क्या रहेगा? 1/4, राइट, प्लस 1/8 प्लस 1/16 लाइक दिस. इसका एडिशन क्या होता है? Sum to infinity GP.
ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है वेट अ मिनट. ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज इक्वल टू gravitational field is equal to gm divided by r square. Okay? gm divided by r square. So this is r square, and it is not minus, it is plus gm divided by r square. Okay, plus gm divided by r square. So this is nothing but 2 square, 4 square, 8 square, 16 square, like this. This will be gm divided multiplied by 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16. और ये तो बड़े वैल्यूज है तो इसको छोड़ दो. सो gm, हाँ इसका समेशन पता है आपको क्या फॉर्मूला है? a by 1 minus r. a divided by 1 minus r. हाँ, उसमें r होगा रेशियो. r it is nothing but the ratio. कोई भी दो टर्म का रेशियो. सो a आपका 1 है, राइट? फर्स्ट एलिमेंट ना a. हाँ. एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस. हाँ. कोई भी दो टर्म का रेशियो मींस 1/4. ओके, इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो, इट विल बी 1/4. सो दिस विल बी Option B. 4 gm divided by 3. Okay, so a divided by 1 minus r is the formula. Okay, next 105 सेम है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है. ओके, सो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर नहीं आएगा, gm डिवाइडेड बाय r आएगा. करो, कैलकुलेट करो. 105. ओके, डी ऑप्शन आया सत्य प्रकाश को, अनिरुद्ध को भी डी ऑप्शन. गुड, सेम किया, ऐसे ही किया. gm डिवाइडेड बाय r. सत्य प्रकाश. हाँ सर, ऐसे ही किया जैसा पिछले वाला किया था. Okay. नहीं, वो फील्ड था ना, वो r स्क्वायर यूज करना था, यहाँ पे gm डिवाइडेड बाय r यूज करना. ओके, गुड. So v1 plus v2 plus v3 ऐसा plus dot dot dot. Okay, so minus gm divided by r मतलब 1. Okay, suppose gm को बाहर निकाले थे, 1 divided by r1 plus 1 divided by r2 plus 1 divided by r3. So this will be minus gm into plus dot 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 will be there. 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4. Okay, dot dot dot. This will be minus gm, and the formula is a divided by 1 minus r. This is minus gm, a it is 1, 1 minus r it is the ratio, half है इसका ratio. So this will be and mass it is also given. Okay, mass it is what, 2 kg. So minus 2 gm आ गया, तो mass it is what, 2 kg. तो m की जगह पे 2 लिख दोगे तो 4g हो जाएगा. So that will be option D, right? Yes. 106. Two heavy spheres of mass m are kept separated by a distance of 2r. The gravitational field and potential at a point, midpoint of a line joining the centers of the spheres are. Two heavy spheres of mass m are kept separated by a distance of 2r.
the gravitational field and potential at the midpoint. So gravitation potential चाहिए. Gravitation potential, it is nothing but the addition of the individual gravitation potential. तो वो तो zero नहीं रहेगा. लेकिन अगर दोनों same masses है, right ना, two heavy spheres of mass m, तो exactly उसके midpoint पे उसका gravitational field कितना हो जाएगा? Zero. समझ में आ रहा है? तो gravitational field तो zero ही रहेगा, right? समझ में आ रहा है कि नहीं? Gravitational field it will be zero. ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है, तो ऑप्शन बी आ सकता है, राइट. बट ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस भी है, तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ओके, वेरी सिंपल ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैलकुलेशन इज. सबको समझ में आया ना ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कैसे रहेगा? दिस इज व्हाट मास एम, दिस इज व्हाट मास एम, दोनों का सेम मासेस है, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल होगा, तो ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. बट सपोज पॉइंट पी पे वी वांट ग्रेविटेशन पोटेंशियल, सो इट विल बी v1 plus v2 which is minus gm divided by what is the distance यहाँ से लेके यहाँ तक, it is what r, gm divided by r, minus यहाँ पर भी क्या, gm divided by इधर से लेके इधर तक का distance, it is what r, because complete distance दिया है, it is what 2r. So this will be minus 2 gm divided by r. Okay, that is option B. Okay, option B is correct. Okay, so 107. सर एक सेकंड के लिए लेफ्ट में दिखाना, एक सेकंड के लिए. हाँ सर ठीक है, हो गया सर. Okay, 107. At what height from the surface of the earth the gravitational potential and the value of g are this much? तो height पूछा है. Okay, so gravitation potential का फॉर्मूला लिखेंगे. रांची सिंधे, आपको कौन सा आंसर आया 107 का? नहीं, वो 105 का था सर, आपने अभी देखा. ओके, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी. ओके, ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब v, इट इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r प्लस h, राइट. एंड द वैल्यू ऑफ g, gh फॉर्मूला इट इज इक्वल टू व्हाट, gm divided by r plus h the whole square, राइट ना. तो ये फॉर्मूला है ना दोनों का, करेक्ट. Yes or no? V it is equal to Yes. minus gm divided by r plus h, gh it is equal to this. So आपको क्या चाहिए? हाइट चाहिए, h चाहिए, तो दोनों में gm कॉमन है. तो सपोज अगर हम डिवाइड करते हैं तो v डिवाइडेड बाय gh क्या रहेगा? gm कैंसिल हो जाएगा, r plus h द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r plus h आ जाएगा. R plus H ही बचेगा. तो एक r plus h बच जाएगा, राइट, r plus h. तो यहाँ पे v का वैल्यू है हमारे पास में 5.4 into 10 raised to power 7. इसका आंसर है 6. सिर्फ वो माइनस का नहीं होगा, माइनस नहीं, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना. अगर सपोज माइनस लेते हैं तो ये इधर प्लस ले लो, ये जो माइनस है ये इधर प्लस ले लो, इधर माइनस कर दो, माइनस भी हो गया, ठीक है, ये माइनस भी हो गया, और v का वैल्यू देखो क्वेश्चन में माइनस ही लिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. ओके. हाँ, अभी इसको सॉल्व करो. So this is 6 1s are 6 9s are, right? So this is 9 into 10 raised to power 6. और r का वैल्यू कितना होता है? r का वैल्यू होता है 6.4 into 10 raised to power 6. ऐसा दिया भी है क्वेश्चन में, प्लस h. So h चाहिए, तो h will be equal to 9 minus 6 into 10 raised to power 6. 9 minus 6 कितना होता है? 3.
ना 6.4 है ना ये 6.4 कितना होता है 2.6 so 6.4 it will be 2.6 so 2.6 it is option C 2.6 option C option C ये चलो लास्ट के दो क्वेश्चन है 45 तक है ना लेक्चर नहीं सर 130 तक है। अच्छा चलो ठीक है क्यों गुस्से से बोल रहे हो फिर 108 108 okay the satellite of mass m is revolving in circular orbit of radius r around the earth its angular momentum with respect to the center of its orbit is so angular momentum find करना ठीक करो बताओ कैसे करते हैं डी है क्या ऑप्शन अमन सर ऑप्शन बी है क्या बी फॉर बॉल है ओके गुड ये देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आ गया सबका सर इसको आपने एंगुलर मोमेंटम के ये इससे ये क्या है एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है ना फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है सर्कुलर ऑर्बिट लिखा है ना तो क्रिटिकल वेलोसिटी जीएम डिवाइडेड बाय आर ओके फिर ये आर रूट के Okay. अंदर गया तो ये आर स्क्वायर हो गया वह एक आर कट हो गया और ये स्मॉल एम रूट के अंदर आया तो एम स्क्वायर हो गया so it is under root of gm m square small r okay option b ओके ठीक है last question of the day last question of gravitation chapter so no कुछ भयानक सा नहीं लग रहा यूज radii of a planet and its satellite are given so एक planet है जिसका रेडियस है 2r उसके आगे सैटेलाइट है जिसका रेडियस है r सपोज नेचुरल सैटेलाइट है दूसरा planet है जैसे कि अर्थ और मून A planet and its satellite are 2r and r radii and their densities are rho and 2 rho. So इसका density है rho, इसका density है 2 rho respectively. Their centers are separated by a distance d. So इन दोनों के बीच का distance दिया है d. The minimum speed with which a body should be projected from the midpoint of the line joining their centers so that the body escapes to infinity is तो suppose ये midpoint पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का distance it will be d by 2 इधर से लेके उधर तक का distance it will be d by 2 तो यहाँ पे कितने speed पे फेंकेंगे so that we want escape velocity क्योंकि उसको escape करवाना है from कितने डिस्टेंस पे हाइट कितना रहना चाहिए उसका d by 2 से इंफिनिटी तक ओके d by 2 हाइट से इंफिनिटी तक ओके तो एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना उसका ऐसे तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एस्केप वेलोसिटी कहाँ से आया था फिर इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी से आया था बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आया था टोटल एनर्जी से टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी राइट तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा
तो गणेशन कर रहे हो? अभी यहाँ पे हमें चाहिए एनर्जी, बट एनर्जी हमें पता नहीं। जब भी एनर्जी नहीं पता रहती है, व्हाट वी कैन कंसिडर, व्हाट वी कैलकुलेट इज करस्पॉन्डिंग वर्क डन. ओके, so we will be calculating corresponding work done. So work done, it is nothing but W. अभी दो प्लैनेट्स का वर्क करेंगे, so that will be W1 plus W2. Okay, so जब भी work done and which energy it is equivalent, potential energy it is equivalent. Potential. Okay, so what is the change in suppose potential energy formula is this: potential energy is minus Gmm divided by R. Okay, so what will be the change in potential energy? Final potential energy Hello. minus initial potential energy, right? So final potential energy minus initial potential energy. Potential energy it is minus Gmm divided by R final minus Gmm divided by R initial. So this is what minus Gmm suppose taken outside, it will be minus 1 divided by R final plus 1 divided by R initial. Okay, ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा ना, राइट? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ इट इज व्हाट नेगेटिव, so minus of minus will be plus, so minus sign जब भी बाहर निकालोगे, so this will be minus. So you remember that what is the change in potential energy, which is nothing but work done. It is minus Gmm into 1 upon Rf minus 1 upon Ri. Okay, तो अभी यहाँ पर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m डैश, वो ऑब्जेक्ट m डैश को हमें एस्केप करवाना है. तो ये स्मॉल m तो चलो बन गया m डैश. अभी ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट प्लैनेट है, तो सपोज उसका नंबर है 1. ओके, डेंसिटी है 1, रेडियस है सपोज 1 r1, उसका डेंसिटी है r2, रो 2 रेडियस है, एंड मास इट इज व्हाट m2. So what will be W1? W1 will be change in potential energy of planet 1. Change in potential energy of planet 1. So what the change in potential energy in planet 1 will be equal to minus Gm1, और ये ऑब्जेक्ट के m डैश. फाइनली कहाँ पे जाना है उसको? इन्फिनिटी पे. So 1 divided by infinity माइनस इनिशियली वो कहाँ पे? 1 divided by d/2 पे. ठीक है, so what will be the value of W1? W1 will be equal to minus Gm1 m dash, 1 divided by infinity it is what? 0, और ये क्या हो जाएगा? 0 minus 2 divided by d. Okay, minus साइन के साथ में, so this will be minus 2Gm1 m dash divided by d. Okay, what is similarly what will be the value of W2? W2 will be minus 2G minus will be plus 2Gm2, okay, m dash divided by d. So what is the total work done? Total work done it is equal to W1 plus W2. W1 plus W2 matlab it will be 2Gm dash divided by d, suppose taken outside, it is what? m1 plus m2. Now these masses are given, we should consider this in terms of density, because उसका रेडियस और डेंसिटी दिया है. So 2Gm dash divided by d. What is m1? Density multiplied by volume, 4/3 pi r cube. उसका रेडियस कितना है? 2r है, राइट? 4/3 pi r cube into density. डेंसिटी कितना है? रो. ओके, प्लस 4/3 पाई, उसका रेडियस r ही है सेकेंड वाले का, तो r क्यूब, लेकिन डेंसिटी कितना है? 2 times रो. Okay, so what you can take outside is 2 into 4 G into m dash divided by d, तो बाहर है पहले से. You can take 4/3 pi r cube, रो को बाहर निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 का क्यूब which is what? 8 plus 2 which will be 10. Okay, तो कितना आ गया आंसर? 220 into Gm dash divided by d into 4/3 pi r cube rho. Okay,
So this is what W. Now this work done, this is what a work done. Okay, it should be given in terms of what? Escaping kinetic energy. Escaping kinetic energy, it is nothing but half mve square. Right now, and this is nothing but the W value. और वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m डैश है. So देखो half m dash v square, it will be equal to 20 g m dash into 4 pi r cube rho divided by 3d. Okay, so m dash will get cancel. वो 2 इधर चला जाएगा, ये 2 सपोज यहाँ चला गया, तो इट इज व्हाट नाउ 40 या फिर 4 into 10. Okay, 4 into 10 सपोज. So what is the value of v then? v में से रूट में से कौन बाहर आ रहा है? रूट में से 4 बाहर आ गया, क्योंकि 4 दो बार है ना. सो 4 बाहर आ गया, बचा गया रूट में 10g. ओके, 4 तो बाहर आ गया, पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय 3d. ओके, ऑप्शन ए, राइट? Yes. Yes. अंडरस्टूड? सर एक बार इसका फर्स्ट पेज दिखा सकते हो क्या? यस सर. हाँ. हाँ समझ गया सबको? सो दिस कंप्लीट्स आवर ग्रेविटेशन. लेट अस टेक एक बार सेकंड पेज ठीक से थोड़ा. ओके. ओके. और बाकी सब कैसे हो? कैसे चल रहा है सबका क्वारंटाइन? मजा आ रहा है ना घर पे बैठ के? मजा में. बकवास सर. सर एक दिन आने दो ना. 2 दिन लग रहा है. अच्छा. अभी तो और बढ़ेगा. चलो एक्सटेंड करने की सोच तो रहे हैं. देखते हैं. सर आपको कैसे जा रहा है? घूम फिर रहे हो मस्त घर पे? नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, देखते हैं. चलो बाय. ओके सर, बाय. 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 शब बखैर.